روزوں کے دوسرے جمعے کی عبادت میں شامل ہے اور آج جو دوسرا کلمہ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے اس کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ دوسرا کلمہ کون سا ہے؟ کیا ہے بتایا ذرا۔ کا دوسرا کلمہ جیسے آج انجیل مقدس میں ہم نے سنا ہے کہ یسوع ڈاکو سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ وہ دوسرا کلمہ ہے جو یسوع اپنی زبان سے کہتا ہے جب وہ صلیب پر تھا۔ اور میرے عزیزوں یہ بات یاد رکھیں کہ یسوع مسیح جب صلیب پر تھا تو ڈاکو واحد شخص نہیں تھا کہ یسوع سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہاں موجود بہت سارے آدمی اور بھی تھے جو یسوع سے بات چیت کر رہے تھے اس لیے کہ یسوع کسی نہ کسی طریقے سے ان کی باتوں کا جواب دے۔ وہاں رومی سپاہی تھے جو یسوع پر ٹھٹھا کر رہے تھے کہ دیکھو یہ ہے یہودیوں کا بادشاہ۔ وہاں فقی فریسی بھی تھے جو یسوع کو یہ کہتے تھے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو نیچے اتر آ۔ وہاں یہ ڈاکو بھی تھا، برا ڈاکو، جو کہتا ہے کہ تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا اگر تو مسیح ہے۔ یہ ایسے بندے تھے جو یسوع کے منتظر تھے کہ یسوع کوئی نہ کوئی ان کو جواب دے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ایک بات ہم نے یہ سمجھ لی ہے کہ چاہے یسوع مسیح اس وقت مصیبت میں تھے، چاہے اذیت میں تھے، لیکن وہاں بھی وہ قادر مطلق ہے۔ وہاں بھی وہ کسی کی مرضی پر نہیں چلتے بلکہ اپنی مرضی سے ہر چیز کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں جو 7 کلمات یسوع نے صلیب پر کہے ہیں ان کا خاص مقصد ہے۔ اور جب صلیب پر وقت مناسب آیا یسوع نے اسی وقت ان کلمات کو ادا کیا۔ یسوع مسیح سے بڑے بندے باتیں کرنا چاہتے تھے لیکن یہ بندہ ایک ڈاکو، 2 ڈاکو تھے نا، ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں رکھا تھا یسوع کے، لیکن ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی کو ڈانٹا اور یہ کہا کہ تو اب بھی خدا سے نہیں ڈرتا۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ اب تو موت تیرے سامنے ہے، ابھی تو خدا کا خوف کر لے، خدا سے معافی مانگ لے، ہو سکتا ہے کہ خدا تجھے تیرے گناہوں سے معافی دے دے۔ لیکن تو اب بھی اس بندے کو جو اس وقت مصیبت میں ہے، جس نے نہ تو کوئی گناہ کیا ہے اور جو صرف اپنے ہی لوگوں کی وجہ سے صلیب چڑھا ہے، تو اس پر ٹھٹھا کر رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تو اپنے کیے کا ہم لہٰذا بھگت رہے ہیں۔ وہ ڈاکو کیا کہتا ہے کہ ہم نے جو کام کیے ہیں اس وجہ سے ہمیں یہ سزا ملی ہے۔ اور میرے عزیزوں ایک بات بڑی واضح ہے اس ڈاکو کی۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کئی بندے برے نہیں ہوتے لیکن حالات ان کو کیا بنا دیتے ہیں، برا بنا دیتے ہیں۔ ان کے لیے کچھ ایسے واقعات زندگی میں پیش آتے ہیں کہ وہ برے بن جاتے ہیں یا برے کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اس ڈاکو کے ساتھ بھی کہتے ہیں کہ ایسا ہی مسئلہ تھا کہ یہ شخص چاہتا نہ تھا لیکن حالات کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ ڈاکو بن گیا۔ لیکن یہاں پر وہ دوسرے ڈاکو کی طرح نہیں ہے۔ وہ دوسرے ڈاکو کی طرح کسی کا ٹھٹھا نہیں اڑا رہا، کسی کو کہہ نہیں رہا کہ وہ خود بھی بچے اور ہمیں بھی بچائے، بلکہ وہ قبول کر رہا ہے۔ قبول کیا کرتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی گناہ میں گزاری ہے۔ کیا قبول کرتا ہے؟ اس نے اپنی زندگی گناہ میں گزاری ہے اور جو سزا اسے مل رہی ہے وہ اس کا حقدار ہے۔ وہ ڈاکو قبول کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو وہ یسوع کو دیکھتا ہے صلیب پر۔ ڈاکو جو تھا وہ یسوع کو کہاں دیکھتا ہے؟ صلیب پر دیکھتا ہے، لیکن اس کے لیے دیکھنے کا نظریہ بڑا فرق تھا۔ جو برا ڈاکو تھا اس کے لیے یسوع مصیبت میں ہے، نہ تو اپنی مدد کر سکتا تھا اور نہ اب ان کی۔ لیکن اس ڈاکو کے لیے یسوع اذیت میں تو تھا، مصیبت میں تھا، لیکن اس کے باوجود یسوع قادر مطلق تھا، یسوع طاقت رکھتا تھا۔ اس لیے وہ یسوع کو کیا کہتا ہے کہ اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یعنی وہ جانتا تھا کہ چاہے یہ شخص صلیب پر بھی ہے لیکن پھر بھی اس کے پاس کیا ہے؟ قدرت ہے۔ چاہے ابھی چند لمحوں کے بعد یہ مر جائے گا لیکن اس کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوگی۔ وہ جانتا تھا، اس نے پہچان لیا، کیونکہ جب وہ موت کے قریب تھا تو اس نے خدا سے کیا معافی مانگی اور خدا نے اسے کیا کیا؟ معاف بھی کیا اور ہمیشہ کی زندگی کا تحفہ بھی دیا، یہ کہتے ہوئے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ اس نے یسوع کو جو کل کائنات کا بادشاہ ہے اس کو پہچان لیا تھا۔
और मेरे चीजों ऐसा ही उन सब के साथ होता है जो उसको पहचान लेते हैं। जैसे यरूह का नबी था ना, वो उसने आवाज लगाई कि ऐ दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर। वो यानी जानता था कि ये वही है जिसने दाऊद की नस्ल से आकर तख्त को संभालना है और उसके पास कुदरत है कि ये कुछ भी कर सकता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब देखा कि इसने मुझे पहचान लिया है, तो यीशु क्या करता है, उसे शिफा देता है। और आज भी जब डाकू यीशु की असलियत को पहचान लेता है तो यीशु से क्या कहता है कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। और मेरे अजीजों, ये जो जुमला है, ये जो दूसरा कलमा है, इस पर एक लफ्ज पर यीशु बड़ा जोर देता है, वो है आज ही। किस लफ्ज पर? आज ही। मुकद्दस लूका की इंजील में 4 दफा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले इसका मतलब क्या है जब इस्तेमाल हुआ है? ये जब भी लफ्ज आया है आज, यीशु से इस्तेमाल करता है या लूका इंजील, तो उसका मतलब ये होता है कि इसके बाद कोई अजीबोगरीब चीज होने वाली है। हमारी जो निजात की तारीख है वो बदलने वाली है। यहाँ तो बहुत सारे लोगों की तब्दीली होगी और यहाँ किसी एक शख्स की जिंदगी बदल जाएगी। सबसे पहले लूका अपनी इंजील के दूसरे बाब की 10वीं आयत में कहता है, उस वाक़े को बयान करता है जब फरिश्ते चरवाहों के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे लिए आज ही एक मुनज्जी पैदा हुआ है। यानी वो बताता है कि आज तुम्हारी निजात की तारीख जो है वो बदल चुकी है, क्योंकि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हो चुका है। लफ्ज आज ही इस्तेमाल करता है मुकद्दस लूका। उसके बाद यीशु जब बियाबान से वापस आता है 40 रोज बाद, तो अपने शहर नासरत जाता है। उसे इशारा नबी का तुमार पढ़ने के लिए दिया जाता है और जब वो तुमार पढ़ के वापस बैठता है तो लोगों से मुंह खोलकर कहता है कि आज ये नविश्ता तुम तक पूरा होकर पहुंचा है। क्या है? आज ये नविश्ता तुम पर पूरा होकर पहुंचा है। यानी उस नविश्ते में ये था कि रूहे खुदा मुझ पर है, उसने मुझे मसा दिया है कि गरीबों को खुशखबरी, अंधों को बनाए, कुचले हुओं को आजादी दूं। और यीशु कहता है कि ये जो बातें हैं ये किसके हक में? मेरे हक में कही गई थी और मैं तुम्हें आज बता रहा हूं कि ये बातें अब तुम अपनी आंखों से भी देखेंगे, क्योंकि पहले तुम सुनते थे, अब तुम देखोगे, क्योंकि अभी निजात जो है, जो वक्त है वो बदल गया है। तीसरी दफा बहुत सारे बंदों की तब्दीली नहीं हो रही, सिर्फ एक शख्स की तब्दीली हो रही है और वो है ज़कई। मुकद्दस लूका अपनी इंजील के 19वें बाब में लिखता है कि जब ज़कई दरख्त पर था तो यीशु से कहता है कि ऐ ज़कई नीचे आ, क्योंकि आज तेरे घर में निजात आई है। यहाँ जब यीशु लफ्ज इस्तेमाल करता है ना आज, तो वो एक शख्स की जिंदगी बता रहा है जो बदलने जा रही है। और आखिर में सलीब पर यीशु क्या कहता है डाकू को कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यानी यहाँ भी यीशु एक शख्स की जिंदगी को क्या कर रहा है? बदल रहा है। या उस शख्स की जिंदगी जो है वो तब्दील हो रही है, जो गुनाह में थी अभी वो फजल में आ रही है। और मेरे जैसे यीशु से क्या कहता है कि तू मेरे साथ कहाँ होगा? कहाँ होगा? फिरदौस एक ऐसी जगह है जहां हम खुदा के क्या होंगे? रूबरू होंगे। खुदा हमारे सामने होगा। खुदा और यीशु मसीह उस डाकू को ये शर्फ बख्शते हैं कि तू आज ही से, यानी अब ही से कहाँ होगा? खुदा की हजूरी में होगा। कहाँ होगा? खुदा की हजूरी में होगा। और मेरे जीजो ये बात यीशु वाज़ा करता है कि जब भी हम तौबा करें, क्या करें? जब भी हम तौबा करें और हमारी तौबा सच्ची हो तो खुदा हमें हमेशा की जिंदगी अता करता है। और ये मिसाल है हमारे लिए डाकू की। डाकू था, डाकू कोई अच्छा काम करते हैं? डाकू कोई अच्छा काम करते हैं? आप बताएं जरा, क्या करते हैं? वो नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन उसके बावजूद यीशु से क्या कहता है कि तू आज मेरे साथ। वो इसलिए कि यीशु ने उसके गुनाहों को क्या कर दिया था? माफ कर दिया था। इसलिए कि वो बंदा दिली तौर पर चाहता था कि उसे माफी मिले। वो चाहता था कि उसकी तौबा जो है वो कबूल हो। और मेरे चीजों ऐसा ही हमारे साथ है। बाज़ ऐसा होता है कि हम तब्दील होना चाहते हैं, लेकिन अक्सर ये सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में बड़े गुनाह हैं, मैं खुदा से बड़ा दूर हूँ, खुदा हो सकता है मुझे माफ ना करे। लेकिन आज हमें खुदा कहता है कि जब भी
चाहे हम मौत के करीब हैं, उससे तौबा मांगेंगे तो खुदा क्या करेगा, हमें माफ कर देगा। और ये बात में याद रखें कि जो तौबा है वो फिरदौस में जाने की चाबी है। क्या है? तौबा फिरदौस में जाने की चाबी है। जब तक हम अपने आप को पाक साफ नहीं करेंगे, जब तक हमारे दिल जो दुनियावी चीजों से खाली होकर खुदा की तरफ नहीं लगेंगे ना, तब तक हम खुदा के पास उसकी हजूरी में फिरदौस में नहीं जा सकते। आज यीशु वाज़ह तौर पर हमें बताता है। और एक चीज जो और हमने सीखनी है, यीशु आज में कहता है कि वो गुनाहों से नफरत करता है। क्या करता है यीशु? गुनाहों से नफरत करता है, लेकिन गुनाहगारों से मोहब्बत करता है। ये बात हमने क्या रखनी है, याद रखनी है कि यीशु क्या करता है? गुनाह से नफरत करता है और गुनाहगारों से मोहब्बत करता है। यकीनन हम इंसान हैं, इंसान होते हुए गलती खता हम करते हैं, लेकिन खुदा इसके बावजूद हमें क्या करता है? प्यार करता है। और प्यार करता है इसका मतलब ये नहीं लेना कि हम गलती करते जाएं, क्योंकि खुदा हमें प्यार करता है। खुदा हमें इसलिए प्यार करता है क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि गुनाहगार जो है वो अपनी जिंदगी को जाया करें। खुदा ये चाहता है कि उसके जितने भी बेटे और बेटियां हैं वो फिरदौस में जा सकें, वो उस जगह में जा सकें जो उसने हम सबके लिए तैयार किया है। खुदा से यही दुआ करेंगे कि खुदा जब उसका कलाम हम सुनते हैं, उनकी बातों पर ध्यान ज्ञान करते हैं, तो खुदा हमें ये फजल अता करे कि हम अपनी जिंदगियों को तब्दील कर सकें, ताकि अपने दिलों को बदल सकें, तौबा कर सकें और खुदा की बादशाही में बड़े लायक